شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا کہ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا ہے، اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے نمبر پر رابطہ کر ان سے ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ دوسرے دن میں نے کلینک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے اور خوفزدہ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کر کے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ ڈرائیور کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے، اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر میں بھیجا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار منگوانا شروع کر دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسے کا ویسا گھر میں جاتا تھا، اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دن ڈرائیور کی غیر موجودگی میں اس نے ڈرائیور کا کمرہ چیک کیا تو وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ اتنے پریشان اور خوفزدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا، کھوسا صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور، اور تیسرا میری بیوی کا کتا۔ اور مزید کہا کہ گھر میں ان تینوں کی کیئر کی جاتی ہے، باقی میری گھر میں کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھتا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے، اور یہ پولیس کیس نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھی۔ اس لیے میں نے دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا، اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھریلو حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف اور بزدل آدمی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ پولیس کیس نہیں ہے، مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا حیرت انگیز ہے، اور ڈرائیور کو چیک کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کو پک کرو، آپ ڈرائیور کو پک کروا کر انٹروگیٹ کروا لیں۔ میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر پک کرنا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصویر اور کار کے کوائف کے ساتھ کار کی تصویریں ارینج کروا دیں۔ 2-3 دن بعد ڈاکٹر صاحب ڈرائیور اور کار کی تصویریں دینے میرے دفتر آ گئے۔ میں نے انسپیکٹر سجاد علی کو بلا کر تصویریں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرائیور کو پک کرنا ہے جب یہ اکیلا گھر سے نکلے، اور ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ میرے افسر کو اپنا گھر دکھا دیں، باقی ڈرائیور کو ہم پک کرا لیں گے۔ انسپیکٹر سجاد علی نے 2 ہفتے کی نگرانی کے بعد ڈرائیور کو پک کر لیا، اور ڈاکٹر کی کار طارق روڈ پر پارک کر کے ایس ایچ او فیروز آباد کو اطلاع کر دی۔ میں نے ایس ایچ او فیروز آباد کو دفتر بلا کر بتا دیا کہ ڈرائیور ہمارے پاس ہے، کار آپ اپنے تھانے لے جائیں، اور ایس ایچ او کے سامنے ایس ایس پی ایسٹ کو بھی فون کر کے اعتماد میں لے لیا۔ میری پوسٹنگ سی آئی اے میں تھی۔ تھانے کا ایس ایچ او ضلعی ایس ایس پی کے کمانڈ میں ہوتا ہے، اس لیے ضلعی ایس ایس پی سے بات کرنا ضروری تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے کی جا رہی تھیں کہ ڈاکٹر کی انگریز بیوی نے ڈرائیور کی گمشدگی پر شور کرنا تھا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بھی بتا دیا کہ ڈرائیور پک کر لیا گیا ہے،
इंस्पेक्टर सज्जाद अली ने ड्राइवर से पूछ-गूछ शुरू की मगर वो शराफत की ज़ुबान समझने के लिए तैयार नहीं था और अपनी शनाख्त छुपा रहा था। इसी तरह ड्राइवर छितरोल खाता रहा और रोज़ अपना नाम और पंजाब का कोई गलत एड्रेस बताता रहा और इंस्पेक्टर सज्जाद बताए हुए एड्रेस वाले थाने को पंजाब फ़ोन करके तस्दीक करते और एड्रेस गलत साबित होने पर ड्राइवर को दोबारा छितरोल का सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ डॉक्टर की बीवी ने आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब को तंग किया हुआ था कि ड्राइवर कहाँ गायब हो गया। एडिशनल आईजी साहब रोज़ाना 3-4 मरतबा फ़ोन करके पूछते कि नियाज क्या हुआ, मगर ड्राइवर 25 साल का जवान लड़का था, वो किसी तरह ब्रेक नहीं हो रहा। आखिर एक हफ्ते तक पुलिस की मार खाने के बाद ड्राइवर लड़का रास्ते पर आ गया और उस दिन तकरीबन दोपहर 3 बजे मैं जब दफ्तर पहुंचा तो इंस्पेक्टर सज्जाद अली उसे मेरे पास ले आया और बताया कि सर ड्राइवर लड़का अब सच बोलने लगा है, आप ज़रा खुद उसको सुन लें। लड़के ने बताया कि वो एक ब्रिगेडियर का बेटा है और आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट था और पीएमए ककोल में ज़ेरे तरबियत था। ककोल में दौरान तरबियत उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। ककोल के कमांडर ने मेरे वालिद को शिकायती खत लिखा कि आपका बेटा तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे वालिद उस वक्त कर्नल थे, वो बहुत गुस्सा हुए और मुझे सख्ती से कहा कि अगर काकोल एकेडमी में तुम फेल हो गए तो तुम मेरे बेटे नहीं हो और वापस घर ना आना। लड़का एकेडमी के इम्तिहान में फेल हो गया और सामान के साथ उसे रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। लड़के ने सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और बजाय घर जाने के कराची आ गया। कराची में कुछ सालों तक इधर उधर नौकरी करता रहा। पिछले 3 सालों से डॉक्टर साहब के पास था। मैंने लड़के से पूछा कितने सालों से घर नहीं गए। लड़के ने बताया कि पिछले 8 सालों से घर नहीं गया। मेरे पूछने पर बताया वो घर वालों से और अपने किसी जानने वाले से राब्ते में नहीं है। मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब आजकल कहाँ हैं। लड़के ने बताया कि वो कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए हैं और आजकल मुल्तान में हैं। मैंने अपने ऑपरेटर को कहा कि कराची मलियर कंड से मुल्तान कैंट का नंबर लेकर मेरी फलां साहब से बात करा दे। कुछ ही देर में ऑपरेटर ने बताया कि ब्रिगेडियर साहब दफ्तर से घर चले गए हैं और घर के नंबर पर उनका नौकर लाइन पर है। दूसरी तरफ फ़ोन पर एक बच्चा बोल रहा था। मैंने उससे कहा बेटा मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात करवा दें। बच्चे ने बताया कि आज रात शबे बारात है और साहब सारी रात जागते हैं, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। मैंने बच्चे से कहा कि मेरी बेगम साहिबा से बात करा दें। बच्चा मुझे फ़ोन होल्ड करवा कर चला गया। थोड़ी देर बाद खातून ने फ़ोन पर मुझे अस्सलामु अलैकुम कहा। मैंने सलाम का जवाब देकर अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं CIA कराची से बोल रहा हूँ और लड़के का नाम लेकर पूछा कि क्या वो आपका बेटा है। लड़के का नाम सुनते ही खातून धारे मार कर रोना शुरू हो गई और इतनी देर में एक मर्द ने खातून से फ़ोन लेकर रोबदार और गुस्से से मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उनको अपना तारुफ करवाया और बताया कि हमने एक लड़का पकड़ा है और वो आपका नाम ले रहा है कि आपका बेटा है। दूसरी तरफ फ़ोन पर ब्रिगेडियर साहब ने रोते हुए बामुश्किल कहा मेरे बेटे को क्या हुआ है, वो खैरियत से तो है ना। मैंने फ़ोन पर कुछ तवक्कुफ़ किया और ब्रिगेडियर साहब के नॉर्मल होते ही उनको बताया कि लड़का हमारी तहवील में है। ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा अगर मुमकिन है तो लड़के की मुझसे बात करवा दें। लड़का मेरे सामने खड़ा था, मैंने फ़ोन उसको दे दिया। फ़ोन पर हेलो करते ही लड़का बच्चों की तरह रोने लगा और मुझे फ़ोन वापस दे दिया। ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि मुल्तान से तो अभी शायद कराची की फ़्लाइट ना मिले, हम अभी इस्लामाबाद या लाहौर के लिए निकलते हैं, कल सुबह पहली फ़्लाइट में हम कराची आ जाएंगे। मैंने इनको अपने दफ्तर का पता समझा दिया। थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर साहब की बेगम साहिबा का दोबारा फ़ोन आया और रोते हुए तसल्ली और यकीन करना चाह रही थीं कि वाकई उनका बेटा हमारे पास है और मुझे इल्तजान अमेज़ लहजे में कहा कि भाई आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो आपकी तहवील से कहीं चला ना जाए। मैंने इंस्पेक्टर सज्जाद को बुलाकर कहा कि लाकअप से ब्लड और शीशे के बर्तन वगैरह हटा दें और मज़ीद आदमी लड़के की निगरानी के लिए लगा दें और उसको हुक्म दिया कि लड़के के लिए नए कपड़े और शेव वगैरह करा दे क्योंकि पुलिस तहवील में लड़के की हालत ख़राब हो रही थी।
खातून तकरीबन हर घंटे बाद फ़ोन करके तसल्ली करती कि लड़का कहीं चला तो नहीं गया। रात को 9 बजे के बाद उसके फ़ोन आना बंद हो गए। शायद ब्रिगेडियर साहब ने मना कर दिया होगा कि मैं बुरा ना मान जाऊं। दूसरे दिन सुबह मीटिंग के सिलसिले में सीपीओ चला गया और 2 बजे दोपहर दफ्तर पहुंचा तो मेरे अर्दली परवेज़ कियानी जीप का दरवाज़ा खोलते ही बताया कि सर आपसे मिलने के लिए मुल्तान से एक फ़ौज के अफसर और उनकी बेगम साहिबा सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जैसे दफ्तर में दाखिल हुआ ब्रिगेडियर साहब और उनकी बेगम खड़े हो गए और मैंने पहले खातून को सलाम किया और ब्रिगेडियर साहब से जैसे हाथ मिलाया तो वो बावजूद कोशिश के अपने आंसू ना रोक सके। मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी लड़के से मुलाकात हो गई है? ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दिया कि नहीं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने खातून को मुखातिब होकर कहा कि बहन, आप मुझे फ़ोन करके इतला करते आप मेरे दफ्तर आ गए हो। खातून अपने आंसू पूंछने लगे और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अर्दली परवेज़ कियानी को कहा कि इंस्पेक्टर सज्जाद अली को कहें कि वो लड़के को ले आए। खातून ने पूछा कि भाई मेरा बेटा आप ही के पास है ना? मैंने जवाब दिया, बहन बस 2 मिनट में वो आ रहा है। दोनों माँ बाप की नज़रें दफ्तर के दरवाजे पर थीं। इतने में कमरे में सज्जाद अली दाखिल हुआ, उसके पीछे लड़का दाखिल हुआ। लड़के के अंदर दाखिल होते ही खातून और ब्रिगेडियर साहब दहाड़े मारते हुए लड़के से चिमट गए। इसी असना में मैं दफ्तर से बाहर निकल गया और सज्जाद अली भी मेरे पीछे बाहर आ गया, इसलिए कि माँ बाप को अपना गुबार निकालने के लिए टाइम मिल सके। थोड़ी देर बाद जब कमरे में खामोशी हुई तो मैं अंदर चला गया। लड़के की वालिदा और वालिद के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे एक सवाल के जवाब में ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि गुज़श्ता 8 सालों में हमने सुख का सांस नहीं लिया, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा। बस अल्लाह पाक को हमारे हाल पर रहम आ गया और कल आपका फ़ोन आ गया। मैंने उसी वक्त एडिशनल आईजी साहब को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि मैं लड़के को ब्रिगेडियर साहब के हवाले कर रहा हूँ। एडिशनल आईजी साहब ने कहा कि नया नियाज ज़रा रुक जाओ, डॉक्टर की बीवी हमारा खून पी गई है, मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ। लड़के को माँ बाप की हवालगी का प्रोसेस आप उसके सामने करना। मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि आप फ़ोन करके वापसी का टिकट करा लें। डॉक्टर की बीवी की कौन सुनता है? अगर उसको कोई अगर उसने कोई कर्जा वसूल करना है तो सिविल कोर्ट में केस कर ले। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने जाते हुए आंसू पूंछते हुए मुझसे वादा लिया कि भाई आपने मेरे बेटे की शादी में ज़रूर शिरकत करनी है। जी तो सामीन, ये कहानी इस चीज़ की अक्कासी करती है कि औलाद को हमेशा गुस्से से या जबरन कोई चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। औलाद को हमेशा नरमी से और प्यार से ही सिखाया जा सकता है। जो लोग औलाद के लिए गुस्सा और सख्त लहजा रखते हैं तो वो औलाद को बागी बना देते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ।